I was also fascinated by other things, let's say marketing, design, and all those things. MBA में मोस्टली थ्योरी कोर्स वर्क होता है. If you have the right skills, you can become a product manager for sure. I couldn't see myself doing coding for long hours or make a career out of there. Hello everyone, I am Sanket Singh and welcome back to my channel. So guys, आज हमारे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट है हमारे साथ. We have Sarthak. For a quick note, me and Sarthak both went to the same college. We both are the same year grad from computer science engineering. अब हमें computer science कितनी आती है वो तो थोड़ा टाइम में पता लग जाएगा. So Sarthak is now working as a product manager too at Razer पे. तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात हम लोग करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में. We'll try to understand कि if you are into the tech background but तुम्हारा कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, you are not too much into the actual execution of the software development and instead you like more of the ideation phase of the product, how product is built up, how do you manage a lot of things are there. So Sarthak can be a very nice candidate to actually answer all of those questions. So before we start, first of all, welcome Sarthak. If you can quickly introduce yourself. Sure. Thanks again, Sanket, for inviting me on this channel to share my life story, my journey. For all the folks, I am Sarthak Jain, currently working as PM2 at Razorpay for their new vertical Razorpay X. So how I started my journey, I think what Sanket mentioned, we are from the same college, same computer science background. But starting से ही it was slightly in a way that I didn't realize कि मुझे coding में इतना interest आ रहा है. मैं coding करता था, I was from computer science background. I couldn't see myself doing coding for long hours or make a career out of there. I was also fascinated by other things, let's say marketing, design, and all those things. And that's why I shifted and took a pivot in a way and researched about this role called product management. But journey इतनी simple नहीं है. Right out of my college, I joined a company called ZS as an associate consultant over there, working in the consulting space, experiencing the MNC side of things. And then I realized कि नहीं, product management is the right thing for me. This is how I started the journey towards being a product manager. I interviewed a lot of companies. I tried startups, MNCs, wherever I can get referrals, wherever I can become a product manager. And then after that, I got my first break into product management at PhonePe. I joined as an APM over there, APM 1. Then after another year, I got promoted to APM 2. After another year, I got promoted as a PM over there. And then after a short stint, I quickly switched to Razorpay, again in the fintech space, and joined as a PM2 at Razorpay. So yeah, that's my short journey. So pretty interesting stuff. तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एल्गो कैंप पे आने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ. तो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द MERN-Stack लाइव फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स. इस कोर्स में हम लोग रिएक्ट से लेकर एक्सप्रेस.js, फास्टिफाई, हर एक चीज फुल स्टैक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एंड टू एंड कवर करने वाले हैं. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज हमने डाली है, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होंगे सब कुछ हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहे होंगे. एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने रखे हैं वो रखे हैं एक स्ट्रीमिंग ऐप, गूगल डॉक्स का क्लोन, और साथ ही साथ तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऊबर क्लोन भी मिलेगा, जिसमें तुम ये देखोगे कि कैसे जियो लोकेशन बेस्ड डेटा को हैंडल करते हैं, किस तरीके से नियर बाय लोकेशंस वाले ड्राइवर्स को तुम एक्सेस कर सकते हो. स्ट्रीमिंग ऐप में तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से तुम वीडियोस की प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो ताकि वो डिफरेंट इंटरनेट स्पीड पे या डिफरेंट बैंडविड्थ पे अलग अलग यूजर्स को अलग अलग क्वालिटीज में दिख पाए. गूगल डॉक्स के प्रोजेक्ट में तुम ये करने वाले हो कि किस तरीके से एक सेम डॉक्यूमेंट पे 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम लाइन को एडिट कर पाते हैं सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे. ऐसे ही बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इंक्लूड करे हैं. कोर्स पूरा एंड टू एंड इंग्लिश में होने वाला है. कोर्स के जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी आई वुड से लेसन्स हैं, वो सब कुछ हमने वेबसाइट पे काफी डिटेल्ड मैनर में ऑलरेडी लिस्ट कर लिए हैं. और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, तुम्हें इसमें DSA एंड टू एंड रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करे हुए हैं. DSA का पार्ट तुम्हारे इंग्लिश में होगा एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वन बंडल दैट यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर. तो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है. डू चेक इट आउट. तुम ये कूपन कोड भी यूज कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. बट एक चीज की गारंटी रहेगी, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स, तो तुम्हारे रिज्यूमे में किस तरीके से तुम इंटरेस्टिंग इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, ये वाली वरी तुम अपने दिमाग से निकाल सकते हो एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर अपकमिंग लर्निंग. साथ ही साथ एक बारी तुम्हारा रिज्यूमे इन सारे प्रोजेक्ट के साथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. तो DSA का पार्ट तुम्हें हेल्प करेगा अपने फाइनल एंड टू एंड इंटरव्यूज को क्रैक करने में और फाइनली एक बहुत ही बढ़िया जॉब लैंड करने में. इसके साथ साथ जो भी कोर्स के टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे, आई विल मेक श्योर दैट आई ट्राई टू अरेंज मे बी एटलीस्ट 1 रेफरल फॉर देम. तो जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, जितना तुम क्लास में अटेंडेंस मेंटेन करोगे, बेस्ड ऑन दैट आई विल बी मे बी हेल्पिंग आउट यू. और भी बहुत सारे आई वुड से जॉब ओरिएंटेड सेशंस रहेंगे कि किस तरीके से तुम अपना बढ़िया रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से तुम अपनी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रिपेयर कर सकते हो एंड व्हाट नॉट. बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल, इंटेंसिव और एग्जॉस्टिव कोर्स रखा है हमने. सो डू चेक इट आउट. और अब वीडियो पे चलते हैं वापस. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सार्थक
and me, both of us started working together as an intern at some startup, right? And then only I realized कि, and we both realized that he has some inclination towards product management. अगर तुम कोई भी कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एक चीज रियलाइज होगी दैट तुम्हारे डेली लाइफ साइकिल में, मतलब तुम्हारी स्क्रम्स में, डेली स्क्रम्स में, वीकली मीटिंग्स में, टीम स्टैंड-अप्स में तुम्हें काफी बार तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट मैनेजर के साथ इंटरेक्शन होगा, बिकॉज दे आर द काइंड ऑफ लाइक द ग्लू that holds the engineering side, the marketing side, the sales side, the maybe the CEO and the co-founders offices. They are the glue that holds everything together. एक interesting चीज जानने की कोशिश करते हैं सार्थक से. तो सार्थक, like you kind of like pivoted your role to PM, और मतलब generally बहुत ज़्यादा पीएम रिलेटेड रोल्स होते नहीं है, मतलब देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ हेड काउंट्स जो पीएम के लिए आता है. और मतलब अगर तुम रिसेंटली देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग इंक्लाइंड हो गए हैं, तो फिर उनको लगता है कि मतलब हेड काउंट कम है, हायरिंग बहुत टाइट है, तो एमबीए करना पड़ता है. बट यू डिडंट डू एनी एमबीए. एफआईआई गाइस, ही डिडंट डू एनी एमबीए. बीटेक के बाद भाई हम दोनों का पेपर लिखने का एंथू खत्म हो चुका था, तो उस खत्म एंथू के साथ ही हमने अपना करियर शुरू करा. सो यू डिडंट डू एनी एमबीए, तो लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मतलब एमबीए करना इंपॉर्टेंट है? आपको कभी हिंडर आता है कि मतलब एमबीए नहीं करा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और कर लेते तो थोड़ा क्या बेटर भी हो सकता था? इफ यू कैन गिव सम गुड क्लैरिटी अराउंड दैट. Sure, definitely. So I think first thing first, what Sanket mentioned, yes, PM is a role where it acts as a glue between a lot of stakeholders, a lot of verticals, whether it's developers or analytics or business or marketing or design. It acts as a function जो सबको facilitate करे, सबका discussion smoothen out करे. You are at the forefront of the ideation कि what you want to bring new to the company, new to the industry, and you are also at the forefront of creating a larger impact. And that was something which was fascinating for me. A lot of time people said कि this is a role which is very scarcely available. मतलब if I have to quote some numbers, मतलब फोन पे में there are more than 2,000 developers, close to that as an head count, 1,000 plus developers basically, and less than 100 product managers. So if you see about the ratio, it's very less, and that also can be seen across the industry that you have a very less head count. But that does not mean that you cannot grab this opportunity. A lot of time it has been said as a myth that you need an MBA to be a product manager because it involves a word called management or manager, but it is not true. I can very well vouch for that, and a lot of I know a lot of people who are also not from MBA background and have cracked into this opportunity. So I think the one thing that you need to know, if you have the right set of skills, if you are someone from any of the backgrounds, whether it's development, whether it's from any other industry, it does not it cannot be restricting. nahi, you need an MBA, then only you can become a product manager. If you have the right skills, you can become a product manager for sure. Extending on the same question, so product manager ke sath, there's always this notion that you need to know all the things about the business and other things. It's not like that. You can always have other set of skills as well. So I was coming from computer science background, so my technical part was strong. Then I had an experience of interacting with clients. I had an experience of interacting with designers. So I also have those skills as well. And then also coming from consulting space, I had a role which was very closely related with data and analytics and Power BI related stuff over there. So data के साथ, डिजाइन के साथ, डेवलपमेंट के साथ कैसे खेलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, दैट वाज समथिंग व्हिच केम आउट एज अ स्ट्रांग सूट फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट शॉर्टलिस्टेड अ लॉट ऑफ कंपनीज एज अ पीएम. ओके, कूल. सो नाउ हमें पता लग गया कि मतलब एमबीए इज नॉट काइंड ऑफ लाइक मैंडेटरी. बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास. जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो सिनेरियो क्या होता है कि मतलब हमें पता है कि डीएसए से क्वेश्चन आएंगे, लीड कोड आजकल इतना रेलेवेंट हो गया है कि लीड कोड से ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं. उसके बाद तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें अपने कुछ डेव स्किल्स दिखाने होंगे. इफ यू हैव ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, रियली नाइस. तुमने कुछ पहले डेव इंटर्नशिप्स करी हैं, तो वी नो जनरली लाइक इंटरनेट पे काफ़ी अबंडेंस में ये डिटेल अवेलेबल है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, इफ यू वांट टू लाइक गो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या कुछ करना पड़ता है. बट लाइक यू रिसेंटली टुक अ शिफ्ट फ्रॉम फोन पे टू आई वुड से रेजर पे, ठीक है, और उससे पहले भी जेडएस से फोन पे के लिए आए. तो जब यू ज्वाइंट फोन पे तब आप एज एन एपीएम आए, अभी यू ज्वाइंट एज अ PM2, यू शिफ्टेड एज अ PM2. तो मतलब काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि लाइक इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इफ यू वांट टू प्रिपेयर, मतलब ऐसा जो भी तुमने जैसे कहा कि एमबीए में मोस्टली थ्योरी, मतलब थ्योरी कोर्स वर्क होता है, तो क्या तुम्हारे इंटरव्यूज में भी वो थ्योरी कोर्स वर्क पूछा जाता है? हाउ एग्जैक्टली इट इज लाइक? So yeah, I think Sanket, very good question, and one of the interesting question that I also was thinking about कि कैसे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, क्या चीज़ प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन उस टाइम पे. अगेन द पोजीशन वाज वेरी स्कार्स, एंड जो टिपिकल एक
सिनेरियो होता है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर कि यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग, DSA राउंड ऑफ क्वेश्चंस एंड देन मे बी सिस्टम डिजाइन, वैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट नहीं होता है. द फॉर्मेट इज वेरी वेरी कंपनी ओरिएंटेड, कंपनी रिलेटेड, कि अगर कोई कंपनी होगी वो किसी और फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगी, किसी और टाइप के क्वेश्चन पूछेगी. सो and that was the interesting part about it. If I start from the very beginning, this is the beauty of it, ki you don't know. Ocean is the vast syllabus that you can see. Like it's so huge that you cannot complete the entire syllabus. The beauty of it is that you don't have to complete the entire syllabus. Again, it is very practical oriented interviews. आपको theoretical questions नहीं आएंगे, से जैसे definitions नहीं पूछी जाएंगी. It's not like that. कोई वाइवा में बैठे हो कॉलेज के कि अच्छा इसकी डेफिनेशन बता दो. इट्स मोर लाइक कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, आप कितना क्विकली सोच पाते हो, कितना वाइड आप सोच पाते हो. मुझे एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, गिविंग अ रैंडम एग्जांपल कि 10% ओला की बुकिंग्स ड्रॉप हो गई हैं. तो हाउ वेल यू कैन थिंक अबाउट कि क्या रीजन हो सकते हैं. इज इट बिकॉज किसी पर्टिकुलर मार्केट में कुछ नया कॉम्पिटिटर आ गया है, इज इट बिकॉज दिन ऐप में कोई बग आ गया है, इज इट बिकॉज गवर्नमेंट का कोई नया रूल आया है. हाउ वास्ट यू कैन थिंक ऑफ द रीजन. Similarly, about any other thing, let's say any other problem कि Flipkart के 10% orders increase करने हैं, what could be the ways you can do. नए वेंचर में इन्वेस्ट करना है, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नया फीचर होना चाहिए, नया प्रोडक्ट होना चाहिए, नीड्स टू बी फिक्स्ड ओवर देयर, फनल ऑप्टिमाइजेशन करना है, क्या चीज़ करना है, कितना वाइड सोच सकते हो, कितना अच्छे से सोच सकते हो यूजर को लेकर कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. दैट इज वन थिंग दैट एवरी इंटरव्यू विल बी आस्क्ड अपॉन. कि आपको कोई केस स्टडी दे देंगे, दे विल आस्क अबाउट दिस कि इसको सॉल्व करना है, और आपको अपना थिंकिंग अप्रोच और सोल्यूशन से मतलब थिंकिंग अप्रोच का सोल्यूशन निकालना होता है. इंटरेस्टिंग. और मतलब मेरे को लगता है कि जो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर तुम्हारा काम भी होता है ना, वो भी काफी इसके ओरिएंटेड ही होता है. फॉर एग्जांपल जब मैं गूगल पे में था तो माई टीम ऑल्सो हैड मल्टीपल प्रोडक्ट मैनेजर्स, और जो मेरे पॉड के लिए प्रोडक्ट मैनेजर एलोकेटेड थे वो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल जीपे पे ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो रही है, मतलब ट्रांजैक्शंस फेल हो रही है. फेल होने का रीजन हो सकता है कि मतलब जीपे के सर्वर ही फटे हुए हैं. दूसरा रीजन हो सकता है कि यूजर के साइड से कुछ दिक्कत आ रही है, कि मतलब यूजर पिन गलत डालता है, यूजर के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, फिर भी वो 10,000 रुपए देना चाहता है, बैंक में 10 रुपए हैं. तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. अब ये इंजीनियर का काम नहीं होता था कि मतलब मुझे नहीं सोचना होता था कि मैं यूजर को कैसे बताऊं कि भाई तेरे पे 10 रुपए हैं, तो 10,000 नहीं पे कर सकता. तो ये प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट मैनेजर सॉल्व करते थे कि लाइक अच्छा यूजर को एजुकेट करना. यहाँ पे एजुकेशन वो दे डिटेक्टेड कि अच्छा ये यूजर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, यूजर प्रॉम्प्ट की प्रॉब्लम है कि यार मतलब यूजर को सबसे पहले एजुकेट करना ये जरूरी है कि यार मतलब जितने पैसे हैं आप उतने ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते. और अब मान लो मतलब प्रॉब्लम क्या होती थी कि आजकल क्या होता है यूजर्स की एक बार गलत ट्रांजेक्शन करी कि मतलब बैंक में 10 रुपए हैं, 10,000 भेजने की कोशिश करी, फेल हो गई. उनको ये लगता है कि जीपे में दिक्कत है, वो फिर वो सेम गलती करते हैं. तो वो सेम गलती कैसे करना उनका रोका जाए, किस तरीके से हम उनको एजुकेट करें. एजुकेट करने के लिए सिंपल एक मैसेज भी हो सकता है, बटन्स भी हो सकते हैं जो उनको कहीं पे ले जाके एजुकेट करा दें, कोई वीडियो भी आ सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने कहा कि ओला के 10% ड्रॉप आ गया है बुकिंग रेट में, तो पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि ये ड्रॉप क्यों आ रहा है, क्या वेरिएबल चेंज हो गए, और उसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस. उसके बाद ये सॉल्यूशंस यू हैव टू प्रपोज टू इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग बताएगी कि फिजिबिलिटी क्या है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आगे नासा तो नहीं लिख सकते ना तुम, तो इंजीनियरिंग बताएगी फिजिबिलिटी क्या है, तुम्हारा फाइनेंस बताएंगे कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, फिर उसके बाद तुम फाउंडर ऑफिस लेके जाओगे, उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स द प्रोडक्ट मैनेजर्स डू. मतलब मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम नहीं करता हूँ, बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब तुम प्रोडक्ट मैनेजर के साथ काम करते हो तो तुम्हें दिखता है कि वो क्या काम कर रहे हैं. मतलब प्रोडक्ट मैनेजर का काम बहुत सिंपल भी हो सकता है कि मतलब तुम्हारी ऐप मान लो नाइट मोड इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें एलिमेंट्स के कलर क्या होंगे, इतना सिंपल भी हो सकता है, और इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि पिछले 2 महीने में हमारा रेवेन्यू 20% से ड्रॉप हो गया है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आगे 3 महीने में कैसे इंक्रीज होगा. ये इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी तुम्हारे पास एज अ पीएम हो सकती है. करेक्ट है. आई थिंक आई कैन एग्री टू दैट बिकॉज जब मैं फोन पे में काम कर रहा था, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम कॉल्ड P2P, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस. तो जब भी आप किसी को भी अपनी फ्रेंड्स फैमिली को पैसे भेजते थे, दैट वाज माय टीम. अगर इफ यू हैव रियली लाइक द एक्सपीरियंस फेयर ना, उसके अंदर ऐसा था कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टीम. मतलब वी वर हैविंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन एवरी डे, मतलब क्लोजर टू 100 मिलियन ट्रांजेक्शंस इन अ डे. और उस टाइम पे देयर आर चांसेस कि कुछ ट्रांजेक्शन किसी रीजन से फेल हो जाती है, बिकॉज ऑफ योर बैंक इशू, योर NPCI इशू, इंटरनेट इशू, 100 अदर रीजंस. उस टाइम यूजर को एजुकेट करना, किस वे में एजुकेट करना, कब समझाना, कैसे उसकी ट्रांजेक्शन को वापस सक्सेस लेकर आना. क्योंकि अगर वो एक बार फोन पे से चला गया या फॉर एग्जांपल जीपे से चला गया, उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने देना है. उसको बोलना है कि जब चीज़ें ठीक होंगी तब भी यहीं आना है, या उसको सही प्रॉब्लम बताना. क्योंकि अगर उसको ये लगा कि मेरे 10,000 रुपये भेजने थे और 10 रुपये का प्रॉब्लम है, और जीपे छोड़ के फोन पे चला गया, सिमिलरली फोन पे छोड़ के पेटीएम पे चला गया, कहीं और चला गया, कुड बी अ प्रॉब्लम, मेरे लिए कस्टमर ड्रॉप है. एंड एज यू मेंशन्ड, आई थिंक
problem statement can vary from a small problem statement to big problem statement. It's up to you how much brain that you put. Let's say very simple problem statement संकेत ने बताया कि आपको कलर चेंज करना है, कि डार्क मोड इंट्रोड्यूस करना है समथिंग, बट वो डार्क मोड कैसे होना चाहिए, डिफॉल्ट सेटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस डिवाइसेस में कैसे दिखना चाहिए, इट कैन बी मल्टीपल वेरिएशंस की ग्रे स्केल में कैसा दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली स्विच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट, आर दे लीडिंग टू सम ड्रॉप, उसको पहले 1% का एक्सपेरिमेंट करना है, फिर लोगों के लिए रोल आउट करना है, पहले एंड्रॉइड में लॉन्च करना है कि iOS में लॉन्च करना है, समथिंग लाइक दैट. वहाँ पे हर जगह पीएम इन्वॉल्व होता है. तो इफ यू थिंक अबाउट इट, एवरी स्मॉल डिसीजन दैट यू इंटरेक्ट विद ऑन डेली बेसिस, लेट्स से व्हाट्सएप पे बस मैंने एक हाई मैसेज भेजा, पर उस हाई मैसेज के पीछे 100 डिफरेंट चीजें जो चल रही हैं, उसमें प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है. मेक सेंस. और मतलब ये मुझे लगता है कि प्रोडक्ट वाले साइड पे जो रोल है उसमें तुम्हें डीप इंजीनियरिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब ऐसे तुम्हें डीप टेक नॉलेज ना हो, बट तुम्हें रेलेवेंट टेक नॉलेज हो. मतलब अगर तुम्हें पता है कि अच्छा एंड्रॉयड में ये लिमिटेशन है, iOS में ये लिमिटेशन है, जैसे NFC सेंसर है, तो iOS में NFC सेंसर की कुछ लिमिटेशंस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. तभी तुम देखो मोस्टली जो भी फिनटेक प्रोडक्ट्स है पहले एंड्रॉयड के लिए रिलीज हो रहे हैं, देयर आर सम लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अब तुम्हें एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ही पता होना चाहिए भाई NFC क्या है. तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब जाके तुम्हें कोई और बता रहा है कि अच्छा NFC सेंसर क्या होता है. तो तुम्हें बेसिक टेक नॉलेज तो होनी चाहिए, मतलब बेसिक. और मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा एड ऑन भी रहता है कि तुम्हें थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो इट्स जनरली गुड. तो दैट वाज आई गेस, मतलब तुम्हें पता लग गया होगा कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर लोग क्या करते हैं. FYI, मतलब जब मैं गूगल पे में था तो सार्थक फोन पे में था, और जब मैंने गूगल पे छोड़ दिया तो सार्थक ने भी फोन पे छोड़ दिया. ठीक है. तो आई बिलीव कि सॉफ्टवेयर में तो देखो मतलब कंपनी छोड़ना या स्विच करना एक बहुत ही रेलिवेंट चीज है पे के पर्सपेक्टिव से भी. मतलब तुम्हारे पे में गुड हाइक आता है अगर तुम स्विच लेते हो. तो पीएम रोल पे क्या है, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर और हाइक स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब कि डू यू गेट वेरी गुड पे इफ यू स्विच, और मतलब डिफॉल्ट पे भी क्या है, मतलब जैसे मतलब अगर तुम ये बता सको कि अगर तो कोई एकदम APM एज अ फ्रेशर एब्सोल्यूट 0 ईयर एक्सपीरियंस APM ज्वाइन कर रहा है और वहां से मतलब PM2 तक, बिकॉज यू आर PM2 तो तुम वहां तक का आइडिया दे सकते हो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बेसिस पे व्हाट्स द बेस पे दैट पीपल कैन एक्सपेक्ट. मतलब स्टॉक इस ऊपर मान लेंगे हम लोग, बट बेस पे मतलब व्हाट पीपल कैन एक्सपेक्ट, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है, एंड इज इट लाइक एज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और या कैसे, मतलब इफ यू कैन थ्रो सम लाइट देयर. हाँ श्योर. आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही होता है कि यार पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि सबको ये पता है कि अल्टीमेटली मनी लाइज वेयर यू डू अ कोडिंग जॉब, इसलिए सब कॉलेज में फर्स्ट थिंग दे डू इज लर्न कोडिंग एक्सेट्रा. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट आइडिया. आई थिंक इट स्टिल होल्ड्स ट्रू कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आर कोडिंग जॉब्स इटसेल्फ. आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे तो देयर इज डेफिनेटली हाई पेइंग जॉब्स, and that was still one of the motivation ki I was learning coding somewhere in my college days as well. But this is the only job that I feel is very close to a software developer in terms of compensation. मतलब अगर आप कंपेयर करोगे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी वर्सेस एक पीएम की सैलरी एट सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर वेरी वेरी सिमिलर. मतलब 19-20 का ही फर्क होता है. Again, company to company it can vary. But I can say for sure from my experience that PhonePe and various different companies and the offer letters that I have got from various other companies कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी वेरी वेरी कंपेरेबल होती है प्रोडक्ट के. ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज कंसिडर देम एट वेरी सेम लेवल, इसलिए उनकी हायरार्की, उनकी बहुत सारी चीजें बहुत सिमिलर होती है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जनरली मोस्टली लोग टेक बैकग्राउंड से ही प्रोडक्ट मैनेजर स्विच कर रहे होते हैं, एंड दे आर जनरली हु आल्सो हैव समवॉट आइडिया ऑफ टेक एज वेल कि टेक कैसे वर्क कर रहा है. Majority of the times if you look in your organization, people are from IIMs, IITs, computer science backgrounds जो product managers होंगे. And because of that fact, the salary parity is there. If I have to give some numbers, I started my career with 18 lakhs as an APM. So 18 lakhs is a very good number if you see from a fresher जो college से बाहर निकल रहा है या 1 year experience पे है. FD की भी सैलरी उसी रेंज में होती है. देन अगेन इफ यू जंप अप टू अ PM लेवल, इट इज वेरी क्लोजली 25 to 30 की रेंज में होता है. एंड देन इफ यू अगेन प्रोग्रेस अगेन, जो SD2 के कंपैरिजन में अगर मैं PM2 की बात करूँ तो इट इज अगेन 30+, एंड इट कैन गो अप टू 45-50 वेरी इजीली, व्हिच इज वेरी टिपिकली यू कैन से फॉर SD डिपेंडिंग ऑन MNC वर्सेस. मेक सेंस. तो तुम देख पा रहे हो मतलब सैलरी कंपैरिजन काफी सिमिलर होता है. मैंने सैलरी वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा मतलब इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एज ए सेड मतलब इंडिया में PM वाली मतलब जो रोल्स हैं बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जितने आते हैं मतलब दे गेट फिल्ड वेरी क्विकली. तो मतलब तुम देख सकते हो अगर तुम ऑन एन एवरेज लगाओ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम ऊबर ज्वाइन करते हो, ऊबर अगर तुम एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो तुम 18, 19, 20 के आसपास बेस पे पाओगे. एंड दिस इज अ सिमिलर पैकेज फॉर अ APM इन लेट्स से फॉर एग्जांपल फोन पे, जैसे सार्थक बता रहे हैं. अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है. फॉर एग्जांपल तुम फ्रेशर एज अ मान लो कहीं Amazon जाओगे या Microsoft जाओगे तो वहाँ पे 13, 14, 15 भी मिलता है, तो उतना गैप एग्जिस्ट करेगा. एंड देन
एज सुन एज यू प्रोग्रेस, मतलब APM 1 से APM 2 बन रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट 2-3 लाख हाइक। उसके बाद अगर तुम PM रोल में आ जाते हो तो डेफिनेटली योर बैंड गोज 25 एटलीस्ट। और जैसे तुम PM2 पे आ जाओगे देन योर बैंड विल गो 32 33 प्लस। और ये बेस पे की बात करें, अगेन अगर कंपनी लिस्टेड है तो दे कैन ऑफर यू इवन स्टॉक्स, जहाँ पे थोड़ा स्टॉक्स ऑप्शन होंगे तो हो सकता है बेस पे में वो 1-8 लाख रुपए तुम्हें कम दे। बट मोटा मोटा ये तुम्हारे पास सैलरी स्ट्रक्चर होता है। बोनस स्ट्रक्चर्स भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ काफी सिमिलर होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास ज्वाइनिंग बोनस होता है, रिटेंशन बोनस होता है, रिलोकेशन बोनस होता है, सिमिलर बोनस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगेन एज आई सेड कि काम में भी काफी ज्यादा बढ़िया मजा आता है। काम में थोड़ा मीटिंग्स आई बिलीव ज्यादा होती है कंपेयर टू योर एक्चुअल कोडिंग पार्ट। तो इनके लिए मीटिंग हैवी जॉब रहती है, हमारे लिए कोडिंग हैवी जॉब रहती है। आई बिलीव पीपल गॉट गुड आइडिया। हाँ, आई थिंक फेयरली मोटा मोटा यही होता है कि प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब में थोड़ी सी मीटिंग्स ज़्यादा होती हैं, थोड़ा सा हैंड्स ऑन वर्क की जगह कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क होता है। बट अगेन एट द सेम टाइम यू आर राइटिंग PRDs, sometimes you are also creating some documents for your leadership stakeholders की को भी CEO को कुछ आइडिया पिच करना है, बिजनेस stakeholders को, डायरेक्टर्स को कुछ प्रेजेंट करना है। एट द सेम टाइम कॉम्पनसेशन वाइज आई थिंक दिस वॉज द रियल मोटिवेशन कि मुझे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली सैलरी भी नहीं छोड़नी थी, बट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे कोडिंग में भी उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फॉर ऑल द पीपल हु आर स्टिल स्टक कि मुझे कोडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो मजा नहीं आ रहा है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कैन ऑब्वियसली लुक एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। एंड द फन फैक्ट, आई थिंक जब संकेत ने स्विच किया तब तो मैंने भी स्विच किया है, एंड वी ऑलवेज हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ बेस पे। तो मतलब if you look at from salary lens, you will not miss out on anything from the same point of view. Joining bonus, retention bonus same होते हैं। So if you look very closely, if I have to tell some numbers, PhonePe में when I joined it was 5 lakhs of joining bonus, 18 lakhs of base pay, and then ESOPs on top of it, which was very similar to what Sanket used to get when he switched the job. And then similarly when he switched right now, he is getting somewhat similar what I am getting. So हमेशा compensation और आपके जो दूसरे perks होंगे that are always very very similar to that. मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दिस वेरीज। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग को मैकबुक मिलता है वर्सेस अदर वर्टिकल्स, सो यू आर ऑलवेज ट्रीटेड वेरी वेल एंड एज कंपेरेबल टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मेक सेंस। सो आई गेस लाइक एवरीबॉडी गॉट सम आइडिया, और आई बिलीव दिस विल बी गुड मोटिवेशन। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि कोडिंग इज नॉट समथिंग फॉर यू, बट स्टिल वांट टू बी रेलेवेंट इन टेक, आई गेस प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। Or again, if you have any questions related to product management, or maybe if you want to shift, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो shift भी करते हैं, like they join as a software engineer and then they shift the ladder. So if you want to ask any questions regarding your shift or something, do drop your questions in the comment section below. I'll ask maybe Sarthak to answer most of them. That being said, इस podcast को यहीं पर wrap up करते हैं सार्थक। We will meet soon in the next set of videos, guys. Till then, take care. Bye bye. Again, thanks Sarthak for giving us time, and keep coding everything. For all the people, please do like, share, and subscribe to this channel. And obviously, thank you so much, Sanket, for inviting me on this channel. And thanks everyone for watching this video till the end. Bye bye.